Good evening, dear students. This is Voice of Dheeraj sir from Vatsalabai Vanmadi School of Scholar Armory, and we are studying Social Science of Standard 8. So, students, we have already started this history's lesson number first, where, when, and how, in which we are going to understand the basic background of this modern period of history of 8th standard. Okay, you have already studied the medieval history in 7th standard and ancient history in 6th standard. Okay, so friends, already I have narrated some key factors of this chapter, and now today's topic is India in 18th century. Before this topic, we have already understand the French Revolution, the American Revolution, the background of our modern history. Now, how was the India's situation in 18th century? The death of Aurangzeb in 1707 led to a widespread political instability in India. You have understood the Mughal Empire and the Delhi Sultanate in 7th standard. So I hope you have the knowledge of the Mughal Emperor and Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन हुआ था, and it was founded by Babur in 1506. So friends, बाबर ने मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन किया था. So in 1707 there was a death of Aurangzeb. He was considered as the last Mughal ruler. And after this, after Aurangzeb, the Mughal emperor known as latter Mughals. क्योंकि औरंगजेब के डेथ के बाद जो भी मुग़ल एम्परर गद्दी पर बैठे, दे वेर नॉट इफिशिएंट टू मैनेज दी लार्ज एम्परर ऑफ दिल्ली, large Mughal emperor. Okay, so they were considered as latter Mughal, and they were not that much enough capable to administer the vast emperor. So after the death of Aurangzeb in 1707, the Mughal emperor got instability. Instability means वहाँ पे जो भी पावर के लिए वहाँ पे संघर्ष होने लगा एक दूसरे में. ठीक है. So friends, the other successors of the Mughals dynasty were weak and incompetent. As a result, ambitious provincial governors started declaring their independence and many provincial kingdoms came into existence. तो इसका नतीजा ये हुआ, जैसे लास्ट मुग़ल जो रूलर था वो था बहादुर शाह जफ़र. ओके, बहादुर शाह जफ़र. तो Aurangzeb was very ambitious king who annexed many surroundings empire, but he was not only enough capable to manage the vast area. So he appointed nawabs and nizams. तो ये जो नवाब्स और निज़ाम्स हुआ करते थे, वो राजा को यानी कि औरंगज़ेब को या जो भी उनका हेड है दिल्ली में बैठा हुआ, उनको अपना अकाउंट बराबर से नहीं देते थे. मीन्स दे वेर नॉट अकाउंटेबल टू किंग और किंग. सो दे वेर नॉट देयर गवर्नेंस इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट टू दिल्ली कैपिटल. मीन्स औरंगज़ेब के साथ कोई वो उतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रहते थे. सो आफ्टर the weak administration of Aurangzeb or the latter Mughals, many of Nizams and Nawabs or we can say governors, जो भी किंगडम था उसके टुकड़े टुकड़े में जो भी गवर्नर्स के हाथ में वो रूलिंग के लिए दिया हुआ था, वो खुद को वो इंडिपेंडेंट समझने लगे, उस एरिया के राजा समझने लगे. So the governors started declaring their independence and many provincial kingdoms came into existence. ठीक है. The prominent यानी कि दिल्ली जो मुग़ल एम्पायर है वो टुकड़ों में बट गया, और जो भी गवर्नर्स थे जैसे साउथ में निज़ाम्स थे, नॉर्थ में नवाब्स थे, तो ये लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट जाहिर कर लिया था. The prominent states to declare their autonomy were औध का हम एक बात करेंगे, नॉर्थ में बंगाल है, हैदराबाद है. ये सारे लोगों ने खुद को ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर लिया, एक इंडिपेंडेंट किंगडम जैसे डिक्लेयर कर लिया था. means they got separation from Mughal emperor. Now
they declared. The Sikhs established their independent state under महाराजा रंजीत सिंह. सिखों ने अपना अलग राज पंजाब रीजन में बना दिया था महाराजा रंजीत सिंह के अंडर. ये 18th सेंचुरी की बात चल रही है. आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, देन हैदर अली, ये जो मैसूर के नवाब है हैदर अली, उनके सन टीपू सुल्तान, आपको पता होगा. हैदर अली established his authority in Mysore. The Marathas established their power far and wide. Jats became independent near Agra. The Rohilas founded the state of Rohilkhand. रोहिला लोगों ने अपना एक किंगडम बना लिया था. तो इस तरह से 18th सेंचुरी में आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब जो भी लेटर मुगल्स थे उनका उतना ज़्यादा अपने एम्पायर पे कमांड नहीं था. तो इसके वजह से बहुत सारे रीजनल किंगडम्स इस्टेब्लिश हुए और वहाँ के जो भी गवर्नर्स, नवाब्स, निज़ाम्स हुआ करते थे, हेड्स हुआ करते थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था. ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ. ये एक बात है, ये एक बैकग्राउंड है. आफ्टर दैट द इन्वेशंस दैट इज़ आक्रमण हम बोल सकते हैं ऑफ नादिर शाह इन 1739 में हमारे इंडिया के ऊपर दिल्ली मुग़ल एम्पायर के ऊपर नादिर शाह ने, ये पर्शियन किंग है पर्शिया का, तो उसने दिल्ली के ऊपर अटैक किया था और बहुत ज़्यादा मतलब दिल्ली को लूट के वो लेकर गया था. उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने इसने तो 8 टाइम्स हमारे इंडिया के ऊपर इन्वेशंस किया था, आक्रमण किया था, चल के आया था. 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली. या ठीक है, तो इसमें भी उसने बहुत सारा लूट लेके गया था. विद द तुर्किश कंक्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये इतिहास का बड़ा इवेंट है जिसमें तुर्कों ने ग्रीक एम्पायर जो भी था, बैजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये एक बैजेंटाइन एम्पायर है ग्रीक का. इसको तुर्कों ने जीत लिया था, ऑटोमन एम्पायर ने जीत लिया था. ठीक है, 1453 में. सो फ्रेंड्स, ये भी एक बड़ा इवेंट है. तो तुर्कों ने जैसे इसको जीत लिया तो हमारे एशिया में यूरोपियन पीपल का आना जाना शुरू हुआ. ओके, कॉन्स्टेंटिनोपल जीतने के वजह से. द ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स केम अंडर देयर कंट्रोल. द हाई प्रॉफिटेबल ऑफ इंडियन ट्रेड ब्रॉट यूरोपियन पावर्स टू इंडिया. तो इसके वजह से उनका ध्यान एशिया के, इंडिया की तरफ भी गया. ठीक है, यूरोपियन लोगों का, जिसमें डच है, डैनिश है, पोर्तुगीज़ है, ब्रिटिश है, फ्रेंच है. सो फ्रेंड्स, द डच एंड द पोर्तुगीज़ कुड बी एलिमिनेटेड ईजिली. तो जब डच, डैनिश, पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये लोग डच जो है, डच पीपल, पोर्तुगीज़ पोर्तुगाल के, डच पीपल जो है हॉलैंड के, डैनिश डेनमार्क, ओके, फ्रेंच पीपल फ्रांस के, ब्रिटिश इंग्लैंड के, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के पीपल हमारे देश के तरफ आकर्षित हुए. बिकॉज इंडिया वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, जिसमें कॉटन बोलिए, टेक्स्ट, हम जूट बोलेंगे, हम शुगर केन बोलेंगे, ओके, सो टी बोलेंगे, राइस बोलो, व्हीट बोलो, ये सारी चीज़ों का, नॉट इवन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इसमें मसाले भी है ना, स्पाइसेस प्रोडक्शन में भी इंडिया बहुत ज़्यादा आगे था. सो फ्रेंड्स, इसके वजह से ये लोगों का ध्यान हमारे तरफ आया, क्योंकि उनके यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था. तो दे वांटेड मास नंबर ऑफ रॉ मटेरियल टू रन देयर फैक्ट्रीज़. और उनको जो भी फैक्ट्रीज़ का फिनिश गुड्स होता था उसको बेचने के लिए मार्केट्स भी चाहिए थे. तो हमारे देश जैसा एक फाइनेस्ट मार्केट, एक बड़ा मार्केट उनको मिल गया था. सो डबल वे में बेनिफिटेड था इंडिया से ट्रेड. तो उन लोगों का ध्यान हमारे तरफ गया. हावेवर द एम्बिशंस टू मोनोपोलाइज इंडियन ट्रेड रिजल्टेड इन द इंटेंस रिवॉल्वरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच. जो डच, डैनिश और पोर्तुगीज़ थे वो पहले ही एलिमिनेटेड हो गए, क्योंकि डच, डैनिश, पोर्तुगीज़
ब्रिटिश और फ्रेंच इन लोगों के बिटवीन हमारे इंडिया के ट्रेड के ऊपर मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के लिए इन चारों के बिटवीन झगड़े हुआ करते थे, वॉर हुआ करते थे, रिवॉल्वरी हुआ करता था। सो इसका नतीजा ये हुआ कि डच, पोर्तुगीज, डैनिश तो एलिमिनेटेड हो गए, बट ब्रिटिश और फ्रेंच जो है इन लोगों के बिटवीन थोड़ा ज़्यादा जो है लॉन्ग टाइम वॉर चलता रहा। सो आफ्टर डिफीटिंग द फ्रेंच, बाद में फ्रेंच को भी हरा दिया ब्रिटिशों ने, एलिमिनेटेड कर दिया। देन द ब्रिटिश टूक एडवांटेज ऑफ द वीक मुगल एम्पायर, और जब फ्रेंच यहाँ से निकल गए मतलब उनको वो अंडर द ब्रिटिश काम करने लगे, ठीक है। देन वहाँ पे बचता है मुगल एम्पायर और दूसरे प्रोविंशियल किंगडम्स जैसे मराठा है, सिख है, मैसूर है। तो इन लोगों को भी हराना बहुत आसान हुआ एंड बिगेन टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस। द बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर ऑफ 1764, बैटल ऑफ प्लासी जिसमें सिराज उद्दौला को हराया गया था, जिसके थ्रू ब्रिटिशों ने सिराज उद्दौला को हरा के बंगाल रीजन, यानी प्लासी जो है बंगाल का एक रिच रीजन है, वहाँ पे उन्होंने अपने मन मर्जी का एक मीर कासिम नाम का एक नवाब बिठाया। तो बक्सर में भी शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम, इन लोगों को शुजाउद्दौला, इन लोगों को ब्रिटिशों ने हराया था बक्सर में भी। मेड द ब्रिटिश मास्टर्स ऑफ बंगाल, तो ये दो वॉर के वजह से ब्रिटिश मास्टर हुए बंगाल के, और बंगाल उस टाइम का बहुत रिच प्रोविंस था, ठीक है। द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल हेल्प देम बिकम टू मास्टर ऑफ द एंटायर कंट्री ग्रेजुअली। जैसे जैसे उन्होंने बंगाल पाया, उसके बाद उनकी नज़र दूसरे रीजन की तरफ चली गई। एज अ रिजल्ट द ट्रेडिंग ब्रिटिश कंपनी अमास्ड ऑल पावर इन देयर हैंड्स। तो जब ट्रेड उनके हाथ में चला गया तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने पॉलिटिकल रूल भी गेन किया। सो दे एलिमिनेट द इंडियन पावर्स वन आफ्टर वन। The other, the figurehead Mughal emperor also became a puppet in the hands of the British. puppet यानी कठपुतली बन गए जो भी मुगल एम्पायर थे ब्रिटिशों के हाथ के। They became the virtual master of the whole India, और ब्रिटिश इस तरह से रियल हेड बन गए। ओके, सो फ्रेंड्स, द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश क्रिएटेड डिसकंटेनमेंट। अब ये देखिए, ब्रिटिश जो थे, जो हमारे मुगल एम्पायर थे या दूसरे रीजनल राजा लोग थे, वो पीपल को, मासेस को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते थे, टैक्सेस के लिए बोलो या कुछ भी बोलो। बट ब्रिटिश जो था वो अल्टीमेटली एक फॉरेन पावर था, और वो हमको लूटने के लिए आया था, हमारा डेवलपमेंट के लिए नहीं आया था। तो इसके वजह से जो भी पॉलिसीज़ ब्रिटिश लोग बनाते थे, दैट क्रिएट्स द डिसकंटेनमेंट, यानी कि गुस्सा सेंटिमेंट्स हम बोल सकते हैं, असंतोष हमारे लोगों में भर देते थे उनकी पॉलिसीज़। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया बिगैन टू डिटोराइट्स, और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, क्योंकि हमारे ऊपर हैवी टैक्सेस उन्होंने इम्पोज किया, उन्होंने फोर्स किया कि जो भी रॉ मटेरियल है वो कंपनी को ही बेचे, यानी ब्रिटिश कंपनी को ही बेचे, दूसरे जो भी व्यापारी है, जो दूसरे जो ट्रेडर्स है उनको ना बेचे, ऐसे उन्होंने फोर्स किया। पीजेंट्स को उन्होंने क्या किया कि उनको कैश क्रॉप्स, जो भी कॉटन है, शुगर केन है, टी है, इंडिगो है, ऐसे कैश क्रॉप्स को ही ग्रो कराने के लिए फोर्स किया। तो लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं बचता था,